Hello everyone. In previous video we have discussed about the products of electrolysis. In this video I am going to discuss about those cells and batteries which are very important in our daily life. These cells and batteries are called as what? Commercial cells and batteries. Commercial cells and batteries. Actually these are electrochemical type of cells. Electrochemical types of cell. Why electrochemical types of cells? Because what is net output of any cell? What is net output of any battery? Electrical energy. Electrical energy means we are getting energy in form of electrical energy, and what we are doing is there is a occurrence of chemical reaction inside the cell. There is occurrence of chemical reaction inside the cell, and these type of cells are called as what then? Electrochemical cells. These are type of cells are called as what beta? Electrochemical cells. Now what is the difference between cell and battery? What is difference between cell and battery? Combination of cells is called as what beta? Battery. Combination of cell is called as what? Battery. That's why I am going to deal a combined topic, cell and battery. We can use a common term either cell or battery for the cells and batteries. For the cells and batteries, let us start the topic which is some commercial cells and batteries. Actually, first of all, these are electrochemical cells. These are electrochemical cells. You are getting what I am saying now? Why these are electrochemical cells? Because there is occurrence of chemical reaction inside the cell, and net output is the electrical energy. Net output is the electrical energy, and whenever we are getting a net output as an electrical energy, that type of cell are called as what? Electrochemical cell. That type of cell are called as what beta? Electrochemical cell. Now these are having variety of uses. First of all, let us discuss ki what should be the criteria for a good cell. What should be the criteria for a good cell? It should be easily available. It should easily be transportable. एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो तो कोई दिक्कत ना हो. इसकी एफिशिएंसी अच्छी हो. इसकी जो पोटेंशियल है या इसकी वोल्टेज फ्लक्चुएट ना करे. इसकी वोल्टेज है क्या ना करे बेटा? फ्लक्चुएट ना करे. मोर ओवर सबका प्यारा ये सस्ता हो. ये क्या हो बेटा? सस्ता हो. तो ये एक सेल के क्या है, नॉर्मल से किसी भी चीज़ के अगर हम कमर्शियल वे में बात करें तो अपन को ये चीज़ें चाहिए होती हैं, सस्ती हो, बढ़िया हो ना, ठीक है, टिकाऊ हो, ठीक है. तो यही कंडीशंस किसकी है? सेल का है, सस्ता हो, सुंदर हो, टिकाऊ हो, ठीक है. तो यही है कि ये कंडीशन गुड सेल की होनी चाहिए. तो जो इम्पॉर्टेंट बात है कि सेल कितने टाइप के होते हैं वो डिस्कस करना है. सेल या बैटरीज अपने पास कितने टाइप्स की होती हैं? टाइप्स ऑफ सेल्स एंड बैटरीज. टाइप्स ऑफ सेल्स एंड बैटरीज. ये जो सेल्स एंड बैटरीज हैं बेटा, ये दो टाइप की आपको देखने को मिलेंगी. कितने टाइप की बेटा? दो टाइप की. फर्स्ट टाइप कौन सी है? फर्स्ट है प्राइमरी. फर्स्ट टाइप कौन सी है बेटा? फर्स्ट है प्राइमरी सेल्स. और सेकेंड कौन से है बेटा? सेकेंड है सेकेंडरी सेल्स. सेकेंड कौन से है? सेकेंड है सेकेंडरी सेल्स. फर्स्ट टाइप है प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंड टाइप कौन सी है बेटा? सेकेंड टाइप है सेकेंडरी सेल्स. सेकेंड टाइप कौन सी है? सेकेंड टाइप है सेकेंडरी सेल. अब ये जो प्राइमरी सेल हैं, कौन से सेल हैं बेटा? प्राइमरी सेल हैं, ठीक है. प्राइमरी सेल क्या होते हैं बेटा? आपने खुद ही क्लासिफाई कर सकते हो बेटा. दो टाइप के सेल आपने रूटीन में देखे होंगे, ठीक है. एक तो जिनको अपन चार्ज कर लेते हैं और जिनको अपन रिचार्ज नहीं कर सकते. एक जिनको अपन रिचार्ज नहीं कर सकते, है ना. एक जिनको रिचार्ज कर सकते हैं, एक जिनको रिचार्ज नहीं कर सकते. रिचार्ज में बैलेंस डलवाने वाला नहीं बोल रहा. जिसको आप कहते हैं ना चार्ज लगा ले, उसी को बोलते हैं रिचार्ज करना, ठीक है. कहीं ये ना हो एयरटेल का करवाना है कि जियो का करवाना है, ठीक है. एक वो सेल जिनको अपन रिचार्ज कर सकते हैं, एक वो सेल जिनको अपन रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है. ऑब्वियसली, ठीक है. प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल इसी तरह की ही क्लासिफिकेशन है. यानी कि प्राइमरी सेल कौन से हैं बेटा? नॉन रिचार्जेबल. जिन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता. और सेकेंडरी सेल कौन से हैं बेटा? चार्जेबल या रिचार्जेबल. जिन्हें रिचार्ज किया जा सकता है. मींस यहाँ तो काम है टोटल इलेक्ट्रोकेमिकल वाला. क्या बेटा? टोटल इलेक्ट्रोकेमिकल वाला, ठीक है. केमिकल रिएक्शन होंगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, आपकी घड़ियाँ चलेंगी, आप ये चलेगा वो चलेगा, ठीक है. कभी आजकल तो चलो आता है, वैसे अपने पास नॉर्मल ऐसा नहीं होता कि आप अपनी घड़ी भी चार्ज लगा लो. क्यों? क्योंकि इसमें जो सेल है वो प्राइमरी है. वो क्या है बेटा? प्राइमरी है. कौन सा सेल है? वो प्राइमरी है, ठीक है. तो रिचार्जेबल कौन से होते हैं बेटा? सेकेंडरी सेल. और नॉन रिचार्जेबल
कौन से होते हैं, प्राइमरी सेल। इनके सेल खत्म होने पे हम इन्हें फेंक देते हैं। क्यों? जो केमिकल सब्सटेंस था अंदर, रिएक्शंस कंप्लीट हो गई, सारा करंट फ्लो कर गया, जितना करना था हो गया, जितना होना था अब नहीं होने वाला, अब नहीं होने वाला, ठीक है। मीन्स टिपिकल इलेक्ट्रोकेमिकल है। टिपिकल क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल है, लेकिन इसमें बाई मोड है। इसमें क्या है बेटा? बाई मोड है, ठीक है। आप रिएक्शन हो भी रही है, रिएक्शन हो भी रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने प्लग लगा दिया, रिएक्शन रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है। तो होता क्या है बेटा? वो सिस्टम चल पड़ता है, कौन सा बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला। आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहे हो तो रिएक्शन होने लग जाती है, रिएक्शन होने लग जाती है, ठीक है। रिएक्शन होकर इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट से रिएक्शन, दोनों ही सिस्टम इसमें चलते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी सेल्स। विच सेल बेटा? सेकेंडरी। यानी कि हमारे पर्पस क्या तो इलेक्ट्रोकेमिकल है, लेकिन अगर इसको रिचार्ज करना है तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बेसिस पे ही रिचार्ज होने वाला है, ठीक है बेटा। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बट रिचार्जिंग का कंसेप्ट है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का है। किसका बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है। तो ये देखो प्राइमरी सेल एंड कौन से सेल बेटा? सेकेंडरी सेल। कौन से सेल? सेकेंडरी सेल। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं कौन से सेल से बेटा? प्राइमरी सेल से। कौन से सेल से स्टार्ट कर रहे हैं? प्राइमरी सेल से। तो जो अब का टॉपिक है वो कौन सा है बेटा? प्राइमरी सेल। अब इसमें दो चीज़ें ध्यान में रखना। पहली तो आपको पता लगी गई, रिचार्जेबल है। रिचार्जेबल है, नो सॉरी, नॉन रिचार्जेबल है। क्या है बेटा? नॉन रिचार्जेबल है। ये क्या है? नॉन रिचार्जेबल है। और दूसरी इसकी क्या है बेटा? टिपिकल इलेक्ट्रोकेमिकल है। थर्ड, वन टाइम यूज़ होता है। वन टाइम का मतलब एक दिन नहीं, एक बार यूज़ हो गया, सारा का सारा डिस्चार्ज हो गया, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए तो नॉन चार्जेबल रिचार्जेबल लिख दिया ना, ठीक है। तो वन टाइम यूज़ है। क्या है बेटा? वन टाइम यूज़ है। अब आपके कंटेंट में दो ही ऐसे प्राइमरी सेल हैं जो आपके सिलेबस में हैं और आपको डिस्कस करने हैं। दो ही ऐसे प्राइमरी सेल्स हैं जो आपके सिलेबस में है एंड आपको क्या करने हैं बेटा? डिस्कस करने हैं। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है आपका ड्राई सेल। कौन सा सेल? ड्राई सेल। और इस सेल को हम लेक्लांचे सेल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? लेक्लांचे सेल के नाम से भी जानते हैं। ड्राई सेल और लेक्लांचे सेल कभी आपने देखा होगा, ठीक है। लेक्लांचे सेल कुछ एक इस तरह का सेल होता है ना, घड़ियों में, और जो अपनी वॉल क्लॉक्स हैं, रिमोट कंट्रोल्स हैं, खिलौने हैं, ठीक है, इनमें ऐसी चीज़ें होती हैं। कार आती है, ठक 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 करती छोटे बच्चों वाली, है ना। तो इसमें इस तरह के सेल आपने अक्सरांत देखे होंगे, इस तरह के सेल होते हैं। पेंसिल सेल भी बोलते हैं इनको, है ना। तो इस तरह के सेल आपको देखने को मिलते हैं। दूसरे सेल भी आपने कभी देखे होंगे, आपकी वॉच में होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल से, कई टॉयज़ में भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो कई कैमराज में भी डलते हैं। तो बटन सेल टाइप होते हैं, है ना, जो गोल गोल सेल आपने देखे ही होंगे ना, छोटे छोटे, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं बेटा? वो होते हैं जिंक मरकरी सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं बेटा? वो जिंक मरकरी सेल्स होते हैं। वो कौन से सेल्स होते हैं बेटा? जिंक मरकरी सेल्स होते हैं। बनता तो पता नहीं कुछ इस तरह का बटन सा होता है वो, ठीक है। तो वो कौन से सेल होते हैं बेटा? जिंक मरकरी सेल होते हैं। तो मैं पहले से स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ द ड्राई सेल और द लेक्लांचे सेल। कौन सा बेटा? ड्राई सेल एंड लेक्लांचे सेल। ये क्या होता है और कैसे काम करता है, लेट अस डिस्कस। पहले इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लें कि ड्राई सेल कैसा होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने कभी देखा हो ना, ठीक है, एक बीच में कार्बन की रॉड से निकलती है, काली काली, खोल के देखा हो तो उसको, ठीक है। तो मैं सबसे पहले वो रॉड बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मान लो कार्बन है तो वो ब्लैक, अब ब्लैक तो कहाँ से बना दूँ? तो इस तरह की आपको कार्बन की जो रॉड है वो मिलती है। ये कार्बन की रॉड है। और ड्राई सेल की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? ड्राई सेल, जिसको लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं बेटा।
कौन सा सेल बोलते हैं बेटा, लैग्रांज सेल की। पहले इसकी मैं स्ट्रक्चर की बात करूँगा, बाद में इसकी डिटेल की। ये रोड किसकी रोड है बेटा, कार्बन की रोड है, ग्रेफाइट की रोड है। कौन सी रोड है, कभी आपने खोल के देखा हो तो आपको ब्लैक कलर की रोड इसमें दिखती है, ब्लैक कलर की रोड इसमें दिखती है, ये कार्बन की रोड है। और ये कार्बन की रोड इनसाइड द सेल काम करती है कार्बन, या इसको ग्रेफाइट रोड भी बोलते हो आप, ठीक है। कौन सी रोड, ग्रेफाइट रोड, ठीक है। तो इस सेल में ये कैथोड का काम करेगी। कैथोड मतलब यहाँ पे रिडक्शन होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा, रिडक्शन होने वाला है। कार्बन की रोड है, किसका काम करेगी बेटा, यहाँ पे ये काम करेगी आपका, किसका काम करेगी बेटा, आपका काम करेगी ये रिडक्शन का, कैथोड का काम करेगी। किसका काम करेगी, कैथोड का काम करेगी। इसके सराउंडिंग में एक डीपोलराइज़र ऐड कर दिया जाता है। क्या ऐड कर दिया जाता है बेटा, इसके सराउंडिंग में एक डीपोलराइज़र ऐड कर दिया जाता है जो एनोड और कैथोड को सेपरेट करता है। हाँ, तो जो एनोड और कैथोड को क्या करता है बेटा, सेपरेट करता है। ये डीपोलराइज़र क्या होता है, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस कार्बन पाउडर एज अ, क्या है बेटा, डीपोलराइज़र इसमें ऐड किया है, ठीक है। क्या ऐड किया बेटा, मैंगनीज ऑक्साइड एज वेल एज, तो कार्बन, ओके बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, ठीक है, तो एक इस तरह बटन सा लगा होता है यहाँ पे, है ना। तो ये वो बटन हो गया, ठीक है बेटा। बाहर वाला जो केस होता है ना, ठीक है, नीचे से देखना, कभी कवर नहीं किया होता उसको नीचे से देखना, ठीक है, तो आपको दिखेगा वो जिंक एलॉय होता है। पर्टिकुलरली उसमें काफ़ी ज़्यादा जिंक होता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें क्या अवेलेबल रहता है बेटा, आपके उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में जिंक ही अवेलेबल रहता है। क्या होता है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में जिंक ही होता है, ठीक है। तो एलॉय कहने को है, हम उसको जिंक कंटेनर ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, जिंक कंटेनर ही बोल सकते हैं। थोड़ा वो टेढ़ा हो गया बेटा, इसको कर लेना मैनेज, है ना। तो ठीक है, ये जो कंटेनर है बेटा ऊपर से तो कवर रहता है ना ये, ठीक है, तो यहाँ से आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये जिंक कंटेनर है बेटा, ये सारा का सारा जिंक का कंटेनर रहता है, ठीक है। और जिंक यहाँ पे बिहेव करता है एनोड। क्या बिहेव करता है बेटा, एनोड, ठीक है। तो ये आपकी लिड हो गई, ढक्कन हो गया, क्या हो गया बेटा, ढक्कन हो गया। और ये क्या हो गया बेटा, कैप हो गया। ये क्या हो गया, इसका कैप हो गया, ठीक है। आप कैप ना ही लिखें तो भी कुछ, मेन लिड का ही है ना, ठीक है। और ऊपर से, ठीक है, यहाँ पे ये है ये अमोनियम क्लोराइड प्लस ZnCl2 का पेस्ट है, ठीक है। किसका पेस्ट है बेटा, ये अमोनियम क्लोराइड। थोड़ा सा मैं क्लियरली लिख देता हूँ क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है इन दिस रिएक्शन। किसका है ये, NH4Cl प्लस ZnCl2 का पेस्ट है। और ये पेस्ट बिहेव करता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट, एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब नेगेटिव कौन होगा, पॉजिटिव कौन होगा, ठीक है। सेल की कभी देखा है नेगेटिव कौन से साइड लिखा होता है, टोपी वाली साइड लिखा होता है कि नीचे वाली साइड, नीचे वाली साइड। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना बेटा, ये कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव लिखा मिलता है और यहाँ पे पॉजिटिव लिखा मिलता है। यहाँ पे क्या लिखा मिलता है, पॉजिटिव लिखा मिलता है, ठीक है। तो इस साइड आपको लिखा मिलता है बेटा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इस साइड कार्बन जो इलेक्ट्रोड है वो किसका काम कर रही है, वो कैथोड का काम कर रही है। किसका काम कर रही है बेटा, कैथोड का, ठीक है। तो मैं इधर लिख दिए दे रहा हूँ पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, नेगेटिव। क्या लिख रहा हूँ, नेगेटिव। ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला हिस्सा क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव रहेगा। तो ये है बेटा आपका ड्राई सेल और लेक्लांचे सेल, ड्राई सेल और लेक्लांचे सेल। सबसे पहले, ठीक है, ये सेल वर्क कैसे करता है, ये सेल वर्क कैसे करता है, ड्राई सेल और लेक्लांचे सेल, ठीक है, उसको देख लेते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा इसमें, ठीक है। तो दो जगह आपको रिएक्शन लिखनी है, एक रिएक्शन लिखनी है बेटा एनोड पे और दूसरी रिएक्शन आपको लिखनी है बेटा कैथोड पे लिखनी है। कहाँ लिखनी है, कैथोड पे। वन रिएक्शन आपको लिखनी है बेटा एनोड पे और दूसरी रिएक्शन कहाँ लिखनी है बेटा आपको, कैथोड पे। तो देखो
ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ बेटा, जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं रिएक्शंस लिख लूँ, ठीक है। तो सारा ही इरेज कर देता हूँ, नहीं साइड से कर देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो एनोड जिंक था, एनोड क्या था बेटा, जिंक था, तो एट एनोड ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा, Zn-2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn2 पॉजिटिव, क्या बन गया बेटा, Zn2 पॉजिटिव बन गया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गेन कर लिए जाएंगे बेटा, कैथोड पे, कहाँ गेन कर लिए जाएंगे, कैथोड पे, ठीक है, कहाँ गेन कर लिए जाएंगे बेटा, कैथोड पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट NH4 पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, NH4 पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, ठीक है। MnO2, ठीक है, जो अपन ने यूज़ किया था, ठीक है, क्या बेटा, MnO2, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, एनोड से आए, कहाँ से आए बेटा, एनोड से आए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए। अब कई बार क्या पूछ लेते हैं, सर ये रिएक्शन ऐसे कैसे हो रही है, बेटा रिएक्शन एक्चुअली में ऐसी होती नहीं है, सम डप रिएक्शन लिख दें, बहुत डिटेल्ड रिएक्शन है, 3-4 स्टेप आगे आ जाते हैं जो आपके काम के नहीं है, ठीक है। देन यू कैन कीप इन माइंड लाइक दिस। मैं बता देता हूँ ऑक्सीडेशन कैसे होगा, रिडक्शन कैसे होगा, ठीक है। अब ये MnO2 है जो मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है बेटा, +4 आ रही है ना, क्या आ रही है, +4 आ रही है ना। देखना अभी क्या होने वाला है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, MnO2 है जो कन्वर्ट हो जाएगा MnOOH में, किसमें बेटा, MnOOH में। तो यहाँ पे देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है, ठीक है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन, इसकी -1 OH की, इसकी -2 -3, तो Mn की क्या आ जाएगी बेटा, +3, तो हो गया रिडक्शन, क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन। और यहाँ पे क्या बना, साथ में अमोनिया बनेगा, क्या बनेगा बेटा, साथ में अमोनिया बनेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करके मैं एक्चुअली ये सारा ही इरेज कर देता हूँ, ठीक है, काम का तो है नहीं, डायग्राम तो आपने कर ही लिया, ठीक है। तो इसको करने से पहले डायग्राम एक बार बना लेना बेटा। एनोड पे जो रिएक्शन है, एट एनोड, कहाँ पे बेटा, एनोड पे जो रिएक्शन है वो क्या है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्या बनाएगा बेटा, Zn2 पॉजिटिव, क्या बनाएगा, Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। कैथोड पे जो रिएक्शन है, कहाँ पे बेटा, कैथोड पे जो रिएक्शन है, ठीक है, वो क्या है, NH4 पॉजिटिव प्लस MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्या बनेगा बेटा, मैंगनीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मैंगनीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं बेटा इसको, मैंगनीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे मैंगनीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे कौन से स्टेट में है बेटा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कौन से स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पे साथ में अमोनिया रिलीज़ होता है, क्या रिलीज़ होता है बेटा, यहाँ पे साथ में अमोनिया रिलीज़ होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है बेटा कैथोड पे, कहाँ पे होती है ये रिएक्शन, कैथोड पे होती है, ठीक है। अब आगे इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा दूँ मैं, यहाँ पे भी क्या लग गया, 2 लग गया, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बैलेंस है, सब बैलेंस है, ओके बेटा, ठीक है। तो अमोनिया, हाँ नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या लगा दिया बेटा, 2 लगा दिया, क्या लगा दिया, 2। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। तो एनोड पे जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और कैथोड पे क्या बन जाता है बेटा, MnOOH, ठीक है। अब 2 चीज़ें याद रखना बेटा, एक तो जिंक 2 पॉजिटिव, आपका जो कंटेनर है वो जिंक का बना है, किसका बना है बेटा, आपका जो कंटेनर है वो किसका बना है, जिंक का बना है। और वो जिंक तो कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव में, यानी कि जिंक तो ख़त्म हो रहा है ना, ठीक है। आपका कंटेनर नो डाउट जिंक का बना है, बट जिंक तो ख़त्म हो रहा है, जिंक ख़त्म हो रहा है। अगर जिंक ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो और नया कहाँ से लाएं, ठीक है। आपका कंटेनर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो कई बार आपने नोट किया होगा कि कंटेनर लीक करने लग जाता है वो वाला, है ना। तो वो किस वजह से, ठीक है, आजकल नहीं करते, पहले वाले पुराने, अगर आपको आज से 7-8 साल पहले याद है तो ज़्यादा होता था ऐसा केस। वो इसका रीज़न ये है बेटा कि जो कंटेनर है ना उस सेल का, उसमें क्या है बेटा, टोटली जिंक है और उसमें Zn2 पॉजिटिव बन रहा है वो, और अब जिंक खुद ख़त्म हो रहा है और Zn2 पॉजिटिव बना रहा है, जिंक तो ख़त्म होगा ही होगा। आजकल क्या है, ऊपर एक लोहे की कवरिंग और चढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे वो मतलब प्रोसेस है, होता है दिखता नहीं है, ये नहीं है होता नहीं है, होता है दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये चलता है, ठीक है। तो ये रहता है, तो ऊपर से, ठीक है। अब
कभी आपने ऑब्जर्व किया हो तो सेल में से एक स्मेल आती है, ठीक है, अब बड़ी अजीब सी स्मेल होती है, कई टाइम तक वो सेल पड़ा रहे तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। वो किस वजह से आती है बेटा? अमोनिया की वजह से, ठीक है। और ये Zn2 पॉजिटिव इस अमोनिया को ट्रैप भी करता है, इसका Zn2 पॉजिटिव बनने का फ़ायदा भी है, ठीक है। अमोनिया की स्मेल ऐसे नहीं आती हर रोज़ ही आने लग जाएगी, ठीक है, कभी कभार आती है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है बेटा, ये जो Zn2 पॉजिटिव है अमोनिया के साथ मिलके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में ही सीखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये अमोनिया को ट्रैप कर लेता है बेटा। अगर ये अमोनिया को ट्रैप ना करे ना, ये अमोनिया को ट्रैप ना करे, ठीक, तो क्या होगा कि पहली बात तो स्मेल बहुत आएगी सेल में से, है ना। और कैथोड पे तो रिएक्शन कॉन्टीन्यूस है जब तक सेल वर्किंग में है बेटा, जब तक सेल वर्किंग में है, चाहे 4 महीने वर्किंग में है चाहे 6 महीने वर्किंग में है, कैथोड पे तो जो है रिएक्शन कॉन्टिन्यूड रहेगी। रिएक्शन क्या रहेगी? कॉन्टिन्यूड रहेगी। अब वो कॉन्टिन्यूड रिएक्शन में अमोनिया बनता रहेगा तो कहाँ जाए? गैस है ना, ठीक है, कहाँ जाए बेटा? फूट सकता है सेल क्या करता है? फूट सकता है। तो जिंक क्या करता है बेटा कि सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है उसके साथ। ये जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है, ठीक है, वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा? स्मेल आने से रोकता है और सेल को फटने से भी रोकता है। स्मेल को आने से भी रोकता है और सेल को फटने से भी रोकता है, ठीक है। तो अब सेल काम कब करना बंद कर देता है? पहली बात तो जब जिंक सारा यूज़ हो गया, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रुक जाएगी, है ना। Zn2 पॉजिटिव बन गया, जिंक करोड हो गया, जिंक क्या हो गया? करोड हो गया, तो सेल काम करना बंद कर देगा सेल, ठीक है। ऊपर से अगर जिंक खत्म होगा तो इलेक्ट्रोलाइट भी तो खत्म होगा साइमल्टेनियसली, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनोड एंड कैथोड पे रिएक्शन पैरेलली चलनी है। रिएक्शन क्या चलनी है बेटा? पैरेलली। और इसमें कोई ऐसी रिएक्शन नहीं होती कि हमारे पास कोई सब्सटेंस रीजनरेट हो जाए, दोबारा सब्सटेंस रीजनरेट नहीं होता, ठीक है। दैट्स वाई क्या होता है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ना बेटा, ठीक है, ये जिंक खत्म होने के बाद और अमोनियम क्लोराइड खत्म होने के बाद जो सेल है काम करना बंद कर देता है और इसको रिचार्ज नहीं कर सकते, इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। दैट्स वाई दिस सेल इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? प्राइमरी सेल। दैट दिस सेल इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? प्राइमरी सेल, ठीक है। तो अमोनिया को कौन ट्रैप करता है? जिंक 2 पॉजिटिव आयन। ये बात ध्यान में रख लेना, सीबीएसई बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन बड़ा उठता है, ठीक है, कि अमोनिया को कौन ट्रैप करता है बेटा? जिंक 2 पॉजिटिव आयन है, ठीक है। तो बैलेंस लिखोगे तो यहाँ 4 अमोनिया, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन। ऐसे सीधा नाम बता दूंगा, ठीक है, रटोगे कोई फायदा नहीं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब चैप्टर पढ़ेंगे नाम सीख लेंगे तब ये नाम डिस्कस कर लेंगे कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो ये है। तो अब नेट रिएक्शन लिख दो, ठीक है। नेट रिएक्शन कैसे लिखते हैं? एनोड प्लस कैथोड की रिएक्शन को ऐड करो तो नेट रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो अब अपन को क्या लिखनी है बेटा? नेट रिएक्शन लिखनी है। तो नेट रिएक्शन लिखने के लिए दोनों को क्या कर दो बेटा? ऐड कर दो, ठीक है। तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं और तो कुछ हो नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो अपने पास क्या हो रहा है? जिंक प्लस 2NH4 पॉजिटिव प्लस 2MnO2 गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2MnOOH प्लस 2 अमोनिया, तो इस तरह से ये क्या हो रही है बेटा? रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये नेट रिएक्शन है किसकी बेटा? ड्राई सेल की। किसकी? ड्राई सेल की। अब एक और चीज़ ध्यान में, ठीक है, इसका जो सेल पोटेंशियल है ना, तो वो क्या है? नियरली अपन ये कह सकते हैं वेरिएबल सा है, फिक्स नहीं है, ठीक है। जैसे कि 1.2 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट है, ठीक है, फिक्स। इसका अपन ये नहीं कह सकते कि अपन को वोल्टेज मिलता है। इसका रीज़न क्या है बेटा? अगर कोई सेल उसमें उसकी नेट रिएक्शन में आपको आयंस मिलते हैं ना बेटा, अगर किसी सेल की नेट रिएक्शन में आयंस मिलते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन वेरी करने की वजह से सेल पोटेंशियल वेरी कर जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अपन को आयंस मिलते हैं, इसमें क्या मिलते हैं? यूजुअली अपन को सेल्स में आयंस नहीं मिलते ज़्यादातर, बट इसमें क्या मिलते हैं बेटा? आयनिक फॉर्म में अपन को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा? आपको आपका जो फिक्स आपको सेल पोटेंशियल नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो जो इसका EMF ऑफ सेल है दैट इज़ 1.2 टू 1.5 वोल्ट। कितना बेटा? 1.2 टू 1.5 वोल्ट। गेटिंग? ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट में आता है बेटा
अपन बात कर रहे हैं बेटा जिंक मरकरी सेल की। किसकी? जिंक मरकरी सेल की। तो जिंक मरकरी सेल वो बटन सेल देखा ही होगा ना आपने बहुत बार, ठीक है, आपकी वॉचेस में यूज़ होता है, कई कैमराज में भी यूज़ होता है, कई टॉयज़ में छोटे छोटे सेल नहीं होते, छोटे छोटे बटन जैसे, वो कौन सा सेल होता है बेटा? जिंक मरकरी सेल होता है। कौन सा सेल होता है? वो जिंक मरकरी सेल होता है। अब इसमें कैथोड कौन है और इसमें एनोड कौन है और इलेक्ट्रोलाइट कौन है? अब अगर अपन इसमें एनोड की बात करें तो बेटा एनोड होता है इसमें जिंक मरकरी एमेलगम, जिंक मरकरी एमेलगम। अब ये एमेलगम क्या होता है, अमालगम क्या होता है? ठीक है, जब किसी मेटल को या किसी अलॉय को मरकरी में डिप कर दिया जाए, जब किसी मेटल को या किसी अलॉय को किस में डिप कर दिया जाए बेटा? मरकरी में डिप कर दिया जाए, ठीक है, तो वो जो बिहेव करता है वो एमेलगम कहलाता है। वो सब्सटेंस जो बनता है वो क्या कहलाता है बेटा? मिक्सचर एमेलगम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे कैथोड कौन है? कैथोड पे है यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड प्लस कार्बन, मरकरी ऑक्साइड प्लस कार्बन। और इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन करता है? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है बेटा यहाँ पे ZnO प्लस KOH, ZnO प्लस KOH। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन करता है बेटा? ZnO प्लस KOH। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है? एनोड पे, एनोड पे क्या होना है बेटा? ऑक्सीडेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो जिंक है वो कन्वर्ट होता है जिंक 2 पॉजिटिव में। किसमें बेटा? जिंक 2 पॉजिटिव में। ठीक है, तो एक्चुअली होता कैसे है ये? ठीक है, क्योंकि अपन इसमें अमालगम यूज़ कर रहे हैं, तो जो अपडेटेड वर्जन है कई बुक्स में सीधा जिंक भी लिखा होता है, क्योंकि उसमें से भी तो यूज़ किसने होना है बेटा? जिंक नहीं होना है ना, मरकरी ने नहीं होना। ठीक है, तो ये जो जिंक मरकरी अमालगम में से जिंक की ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन वो होती कैसे है और कैसे अपन को एक्सप्रेस कैसे करनी है वो ध्यान दो जरा इधर। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये है कि OH नेगेटिव के साथ मिलके यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और ये बना जाएगा जिंक ऑक्साइड। ये क्या बना जाएगा बेटा? जिंक ऑक्साइड। अब Zn2 पॉजिटिव लिख लो, जिंक ऑक्साइड लिख लो। ठीक है, तो कई बुक्स में ऐसे लिखा जाता है, NCERT भी ऐसे लिखती है, तो अपन ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो Zn2 पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा बेटा? Zn2 पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, इस साइड क्या इंट्रोड्यूस कर दूँ बेटा मैं? वाटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 2OH नेगेटिव। क्या आ जाएगा बेटा? 2OH नेगेटिव। नाउ कैथोड पे ये जो मरकरी ऑक्साइड है, कौन सा बेटा? मरकरी ऑक्साइड है। कैथोड पे कौन है? मरकरी ऑक्साइड है। ठीक है, ये वो जो निकला हुआ वाटर है वो यूज़ कर लेता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व हुए हैं एनोड से, ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना एनोड से, वो भी कौन यूज़ कर लेता है बेटा? वो भी यूज़ कर लेता है आपका कैथोड। ठीक है, क्योंकि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेनिंग होना है। कैथोड पे क्या होना है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेनिंग होना है। और ये जो मरकरी ऑक्साइड है, मरकरी इन द लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा? कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे 2OH नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 2OH नेगेटिव आ जाएगा। अब नेट रिएक्शन लिख दो। अब क्या करो बेटा? नेट रिएक्शन लिख दो। ठीक है, तो नेट रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी? ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। ठीक है, वाटर से वाटर कैंसिल हो गया, OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कैंसिल हो गए। ठीक है, तो नेट रिएक्शन लिख दो। जिंक मरकरी प्लस HgO, इट गिव्स ZnO प्लस Hg। ठीक है, तो इस सेल का जो पोटेंशियल है बेटा, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो या मरकरी सेल का जो पोटेंशियल है वो फिक्स होता है। वो कौन सा है बेटा? 1.35 वोल्ट है। इसका जो पोटेंशियल आया वो क्या है बेटा? नेट आउटपुट पोटेंशियल है वो क्या? 1.35 वोल्ट। क्यों? क्योंकि इसमें कोई आयन इन्वॉल्व नहीं है, इस रिएक्शन में कोई आयन इन्वॉल्व नहीं है जिसकी कंसनट्रेशन चेंज हो सके। जिसकी क्या चेंज हो सके बेटा? कंसनट्रेशन चेंज हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेल्स के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।